आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बस बीस का आवाज सुफिया जी के बारे में, सुफिया जी का क्या जब तो आर्मी में कैसे गए, वो सारी बातों के लिए मैं संजय भाई को बोलूँ, હું પહેલા બ્રીફિંગ થોડું કરી દઉં બધાને। ઇટ્સ ઓકે। હા બ્રધર ભાઈ વડોદરા માટે પ્રાઉડ મુવમેન્ટ છે, ખાસ કરીને જે પ્રમાણે પાકિસ્તાન પર હુમલા બાદ નામ જે ખુલ્યું દેશની દીકરીનું વડોદરા કનેક્શન, શું કહેશો? સોફિયા કુરેશીએ જે દેશની સેનાને સફળ નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે અને એમના નેતૃત્વમાં દેશની સેનાએ જે સફળ સ્ટ્રાઇક કરી બતાવી છે અને દેશના દુશ્મનોને એમને પાઠ ભણાવ્યો છે, એ જાણીને પુષ્કળ ગર્વનો અનુભવ કરું છું। અને અમારી વિદ્યાર્થીની હતી સોફિયા કુરેશી, એ જ્યારે ખબર પડી ત્યારે તો પુષ્કળ ગર્વની લાગણી અનુભવી। અને મને ખાતરી છે કે એમનું આ પરાક્રમ જોઈને ફેકલ્ટીની, દેશની, વડોદરાની બીજી વિદ્યાર્થીઓને પણ એનાથી પુષ્કળ પ્રેરણા મળશે અને સેનામાં જોડાવા માટે એ પણ આગળ આવશે એવું ખાતરી સાથે કહી શકું છું। જ્યારે અભ્યાસ કરતા ત્યારે એમનામાં આટલું જ કોન્ફિડન્સ હતો જે રીતે કોન્ફિડન્સ વાત કરી છે? હા, એટલે એ જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે પણ એને વારંવાર એમની લાગણી વ્યક્ત કરતા હતા। હું તો એમની સાથે ભણ્યો નથી, પણ એમના ક્લાસમેટ સાથે મારે વાત થઈ છે, એટલે એના પરથી મને ખબર પડી છે કે તે વખતથી જ એમની અંદર દેશદાઝ પુષ્કળ હતી। એમના કુટુંબની અંદર પણ એ જ વાતાવરણ હતું અને એને લીધે જ જ્યારે રિસર્ચ કરવાની એમની અંદર શક્તિ હતી, એમની અંદર કાબેલિયત હતી, છતાં પણ જ્યારે સેનામાં એમને મોકો મળ્યો ત્યારે એમણે પાછું કોઈ પણ વિચાર કરે છે સેનામાં જોઈન કરી લીધું એમણે, અને ત્યાર પછી પુષ્કળ આગળ વધ્યા છે આજે, અને આપણે બધા જોઈ રહ્યા છે કે કેટલી સફળતાપૂર્વક દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે। દેશ માટે શું શીખ આપી રહ્યા છે? દેશ માટે એ જ શીખ આપી રહ્યા છે કે ધર્મ કોઈ મહત્વનો નથી, તમે આ ભારતના નાગરિક તરીકે તમે શું અનુભવો છો અને તમે પોતાને ભારતના નાગરિક તરીકે જ પ્રસ્તુત કરો દરેકે દરેક જગ્યાએ, કોઈ પણ ધર્મનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય। એ આજે એમણે સંદેશો બધાને જ આપ્યો છે। દીકરીઓ પણ પાછળ નથી હોતી, પુરુષોનું જ કામ નથી લશ્કરની અંદર, સ્ત્રીઓ પણ, દીકરીઓ પણ એની અંદર પુષ્કળ લશ્કરની અંદર એટલો જ સારો ભાગ ભજવી શકે છે, એ એમણે સાબિત કરી બતાવ્યું છે। અને એનાથી
દેશની બાકી દીકરીઓને પણ એનાથી પુષ્કળ પ્રેરણા મળશે અને મને ખાતરી છે કે એ વધુને વધુ લોકો સેનામાં જોડાવા માટે આગળ આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ પણ ખાસ આ દીકરીને જ વધાઈ આ દીકરીને જ મીડિયા સમક્ષ લાવ્યા. આ કેટલી મોટી પ્રાઉડ મુવમેન્ટ છે વડોદરા માટે, કારણ કે ખુદ મોદીજીએ પણ આ દીકરીના વખાણ કર્યા છે. પુષ્કળ કેટલી પ્રાઉડ મોમેન્ટ છે એ તો મારાથી શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય એમ નથી. આખો વડોદરા આપણી દીકરીને કાયમ માટે યાદ રાખશે. અમે ફેકલ્ટી તરીકે પણ એમને કાયમ માટે યાદ રાખીશું. અને મેં જેમ પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે જેટલા વૈજ્ઞાનિકો અમારા માટે મહત્ત્વના છે એટલા જ બીજા ક્ષેત્રોની અંદર પણ જે સફળતાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે એ પણ અમારા માટે એટલા જ મહત્ત્વના છે. એટલે અમે પુષ્કળ ગર્વની લાગણી અનુભવ્યા છે અમારી વિદ્યાર્થીનીએ જે પરાક્રમ કરી બતાવ્યું છે એના માટે. એમણે બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં MSc કર્યું હતું. વ્યવહાર હતો એ વખતે કઈ રીતનો સ્વભાવ હતો અને કઈ રીતની દેશદાજ એમને વ્યક્ત કરી? એમનો સ્વભાવ પહેલેથી સરળ રહ્યો છે અને એ અત્યારે પણ દેખાય છે. એટલે એમના સ્વભાવમાં કંઈ બહુ મોટો ફેરફાર આવ્યો નથી. પણ એમની જે સક્ષમતા છે, એમની જે શક્તિ છે એમાં ખરેખર બહુ વધારો થયો છે. અને અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે અમને એવી કલ્પના પણ નથી કે એ આવું કાર્ય પણ કરી શકશે. અને જ્યારે એ ભણતા હતા અમારી જોડે ત્યારે એમનું રિસર્ચ પ્રત્યે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો. એટલે એ રિસર્ચ કરવા માંગતા હતા. પણ એમને જ્યારે આર્મીમાં જોડાવાની તક મળી ત્યારે એમણે ઝડપીને એમને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી. સાહેબ, જે રીતે એમનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? એમનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ પહેલેથી આર્મીનું રહ્યું છે. એટલે એ એમના ફાધર જે હતા એ આર્મીમાં હતા. અને પછી એમની પહેલાં તો ઈચ્છા નહોતી મારા ખ્યાલથી, પણ જ્યારે એમને તક મળી ત્યારે એમને કદાચ એમની અંદર રહેલી ઈચ્છા શક્તિ જાગી ઉઠી અને એમને એ તક ઝડપીને આજે આ મુકામ હાંસલ કર્યો છે. કઈ કોલેજમાં ભણતા હતા અને તમારી સાથે કેવી રીતે એમનો સંપર્ક થયો? એ MS યુનિવર્સિટીમાં જ ભણેલા છે. BSc કેમેસ્ટ્રી ભણ્યા હતા અને પછી અમારી જોડે MScમાં બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. 2 વર્ષ અમે જોડે રહ્યા હતા અભ્યાસ દરમિયાન. અને પછી એના પછી બી એમણે 1 વર્ષ અહીંયા રિસર્ચ માટે જોડાયા હતા અને પછી ટેમ્પરરી ટીચિંગ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. અને એટલે એ લગભગ યુનિવર્સિટીમાં લગભગ 6 થી 7 વર્ષ સુધી અહીંયા હતા. જે રીતે સ્ટ્રાઇક કરી એમને પહેલા તમને ખબર હતી આ બાબતની કે સ્ટ્રાઇકમાં જોડાયેલા છે અને આટલું મોટી અચીવમેન્ટ છે? આ બધી વાત ટોપ સિક્રેટ હોય એટલે મારા ખ્યાલથી આ કોઈને જ ના ખબર હોય. અમને તો બિલકુલ કોઈ જાણ નથી આ વિશે. સાહેબ, અત્યારે કેવી રીતે પ્રાઉડ મુવમેન્ટ કરી રહ્યા છો આપ અને આપની યુનિવર્સિટી બંને? અમે અમારી યુનિવર્સિટી, અમારા ડિપાર્ટમેન્ટના લોકો, અમારા મિત્ર વર્ગ જે 97 બેચના હતા બધા ખૂબ જ ગર્વ અનુભવીએ છીએ. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે હજુ વધારે સોફિયા આગળ જાય અને હજુ ઊંચું મુકામ હાંસલ કરે. જે રીતની ક્ષમતા એમને હાંસલ કરી છે, આજે જે બતાવ્યું છે દેશદાજ એમને વ્યક્ત કરી છે, એક બાજુ જ્ઞાતિવાદના ચાલતા હોય અને બીજી બાજુ દેશદાજ વ્યક્ત કરે, શું મેસેજ આપવા માંગે છે સમગ્ર પ્રકરણના આપ કરી એની દ્રષ્ટિએ જુઓ છો? એટલે દેશ સર્વપ્રથમ છે એ જ સંદેશ મારા ખ્યાલથી મુખ્ય સંદેશ જાય છે એના પરથી કે કોઈ પણ ધર્મ કે જાતિ પ્રથમ નથી, દેશ પ્રથમ છે. વડોદરા આવશે તો આપ શું કહેશો? વડોદરા આવશે તો અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમને મળે. હવે ખબર નહીં ક્યારે આવે ને ક્યારે મળે, પણ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે એ મળે અને અમે એને ખૂબ અભિનંદન આપીશું અને અમે એમની જોડે વધારે ને વધારે સમય વિતાવવાનો ટ્રાય કરીશું. વડાપ્રધાન શ્રીએ એક તક આપી, જેમને મહિલાને એક તક આપી, જે રીતે પ્રાઉડ, શું કહેશો તમે એના? એ વિશે તો હવે મને કંઈ બહુ જાણ નથી. એટલે આપણા દેશના વડાપ્રધાન તો તમને ખ્યાલ છે એમના મનમાં આવું કોઈ ભેદભાવ છે નહીં. એટલે એ દેશ પ્રથમ એમના માટે છે. ભેદભાવની વાત નથી કરતો, જે રીતે તક આપવામાં આવી છે, મહિલાને તક આપી છે. હા, આપણા પ્રધાનમંત્રી તો પહેલેથી જ મહિલાઓ માટે, મહિલા સશક્તિકરણ માટે ખૂબ જ કાર્ય કરી રહ્યા છે અને આ મારા ખ્યાલથી એનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. हम तो बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं. हमें प्राउड इस चीज़ का
कि हमारी बेटी ने अपने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्रीय जागरयाम, हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनकी शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? नहीं, आर्मी बांग्लादेश से आई, नहीं बनी। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है, बहुत देर में हमारे कंट्री ने एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था आर्मी में जाना, तब बहुत महिला कम जाती थी, तब सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें जाना है। नहीं, उससे पहले से होती हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं जा रहा है, मैं जाऊँ, मैंने आपको गो गई, वो सेलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो ये है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र के लिए किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। सर क्या कहेंगे आपके पिताजी सेना में थे, आपकी सेना में थे, आपकी लड़की की सेना में, और किस तरह का पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत ने उसको मौका दिया, एयर स्ट्राइक जानकारी देश के लोगों तक पहुँचाने के लिए? क्या कहेंगे देश को सेवा का पूरा परिवार आपका कर रहा है, वो आपका मकसद पूरा हुआ है? देश को खबर क्या दिया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने को समझता दिया, तो उन्होंने ये मिशन कंप्लीट किया। हमारा मतलब पूरा हुआ अभी कि हमारे बच्चों ने, हमने कुछ किया, अपने राष्ट्र के लिए किया। सर आप तो फौज में थे, अब पाकिस्तान के खिलाफ आगे और कैसी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ देखिए कि हमको अपना पीओ के लाना है पहले, बस ये पीओ के वापस चले जाइए हमने अपना, क्योंकि जो वहाँ पर लोग हैं वो भी हमारे ही हैं, पराए नहीं है, वो भारतीय हैं, उनकी हमने रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, उसके रहते पीओ के वापस आए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री पक्का रहेंगे वापस उसको, नो डाउट, इसमें कोई डाउट शक ही नहीं है। इतना अच्छा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा भाई, बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने कंट्री देश के लिए, जो राष्ट्र को चाहिए वो किया उन्होंने, कोई नहीं कर पाया अभी तक, उन्होंने किया है। सर आज जो मॉक ड्रिल है बड़ौदा में मॉक ड्रिल है, तो बड़ोदरा वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि शायद से ऐसा कोई हमला हो सकता है, तो कितना तैयार रहना जरूरी? तैयार रहना चाहिए, तैयार हम रहना चाहिए, और मॉक ड्रिल पूरी प्रैक्टिस करना चाहिए, पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसमें। और जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उससे सीखो कि मॉक ड्रिल होती क्या है, तो हमने अपनी सेफ्टी की ढंग से करना है। सर आपको लगता है पाकिस्तान इसका जवाब देगा क्या? उनकी अब इतनी हिम्मत नहीं रही, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो किसी के कहने में आकर उल्टी सी हरकत करेगा। हाँ, और हमने, हमारा काम है कि इसको खत्म करना, बस, क्योंकि वो खत्म होने वाला है खुद वैसे भी। सर आप बड़ौदा में कब से, कुछ बताइए आपके बारे में, बड़ौदा में आप कब से यहाँ? बड़ौदा में तो हमको नियर 32 ईयर्स हो गया है। 32 ईयर, 1981 से हुए हैं यहाँ पर, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, फौज में सेना आर्मी में होने के नाते ट्रांसफर हुआ है। मेरे बच्चे हमारे मोस्टली यहीं पर है। रिटायर कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ, ये भी से यही। प्रॉब्लम आता नहीं विश्व में संदेश दिया, सोफिया जी ने हिंदुस्तान ने किया है, क्या बताते हैं इसके बारे में? इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि देखिए, नाम जैसा आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर है। जब सिंदूर छीना गया है, जो जिनका सिंदूर छीना हुआ इंडिया की महिला है, तो जवाब अगर महिला दे तो उससे बेटर और क्या सोच सकते हैं? सर इससे भी अच्छी बात यह है कि जो महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की, उसमें से एक मुस्लिम है, एक हिंदू है। पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो उसको लेकर क्या मैसेज इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सोफिया जी के थ्रू दुनिया को दिया? देखिए, दुनिया के लिए और इस देश के लिए सबसे पहले हमारे देश में जो ये माहौल चल रहा है सब जानते हैं। इससे बेहतर मैसेज क्या है कि इंडिया में आज से नहीं, सदियों से हिंदू और मुस्लिम गंगा जमुना तेजी से साथ चले, और इसी को आगे लेके चलने के लिए मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैसेज दिया है कि एक मुस्लिम लेडी, एक हिंदू लेडी, दोनों साथ में खड़े होकर इस मिशन को पूरा करती हैं और कॉन्फ्रेंस करती है, तो बेहतर मैसेज ये है कि सब धर्म एक साथ रहे।
अब आर्मी में जाने के लिए कौन तैयारी कर रहे हैं अपने परिवार में? अभी आगे के जनरेशन में मेरी बेटी है ज़ारा कुरैशी, अभी ये 10th क्लास में है और इनका अचीवमेंट है कि इनकी बुआ यानी मेरी सिस्टर ही इज़ आइडल फॉर हर कि आगे जाके वो ज्वाइन करे। तो आप मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, इससे भी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए और क्या देना चाहिए? देखिए अभी ये शुरुआत है, इससे ज़्यादा ये है, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा पीओके जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो वापस आए। अगर वो वापस आएगा तो हमारा मतलब ये है कि मकसद पूरा होगा। पाकिस्तान में तो हमारा है। बेशक है, लेकिन वो आना चाहे तो हम उनको लेंगे ना। सर पाकिस्तान हमले की बात करें तो क्या हमने दूसरा सेना में था वो देखिए होता ये है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है देश के अंदर, चाहे कोई भी फैमिली हो, चाहे हमारे हों चाहे सिविलियंस हो, कोई भी, चाहे फौजियों की औलाद हो, हर किसी के अंदर गुस्सा इतना होता है कि कब इनके सर काट के कलम कर। और वो जोश तब भी था और आज भी है। बस इतना है कि आज ये करने के बाद सुकून मिला है कि चलो हमने एक पूरा काम किया। ऑपरेशन के बाद आपके बात जी, ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप उनके बाद उनका छोटा सा कॉल था कि वी हैव डिड इट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरी बात अभी नहीं होती। अच्छा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे थे, आपको तो पता भी नहीं होगा कि वोट करने जा रहे हैं। तो उस वक्त जब आपने टीवी पे देखा उनको तो क्या महसूस हुआ आपको? क्या महसूस मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इट वॉज अ सच्चा मोमेंट। ऐसा लगा भाई हमने दुनिया जीत ली है। ऐसा प्राउड फील हुआ कि भाई छाती चौड़ी हो जाए। लगा कि भाई देश को जवाब देना था और वो जवाब अगर किसी हमारी फैमिली से के थ्रू दिया गया है, उससे बेहतर तो मेरे ख्याल प्राउड की बात ही नहीं है। क्योंकि एक फौजी ज़िंदगी में देश में जब सर अपने आर्मी को ज्वाइन करता है उसका एक ही मकसद होता है, देश के लिए कुर्बान हो जाए या कुर्बानी हो जाए। धर्म के नाम पर जन्म मारा जाए उसका बदला नहीं दिया। बिल्कुल, जो लोग ये चाहते थे कि धर्म के नाम पे गंदगी फैलाए, लोगों में नफरत फैलाए, उसका खात्मा हुआ। हम सब जानते हैं कि कल रात को देश में एक बड़ी बहादुरी वाला काम हमारे देश की तरफ से हुआ, हमारी आर्मी की तरफ से हुआ। और इस काम को अंजाम देने के लिए जो लीड करने वाले लेडी थे वो हमारे सबकी दीदी, हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी। आज मैं आप लोगों को उनकी फैमिली से मिलाने के लिए यहाँ पे मुखातिब हुआ हूँ। ये है हमारे भाई, हमारी मोहम्मद संजय कुरैशी, बाद में ताजुद्दीन कुरैशी जो सोफिया जी के फादर है, बाद में हलीमा दीदी हलीमा आंटी है हमारे, ऐसे मेरे को आंटी लगते हैं, वो है सोफिया जी के मदर। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कौन से बचपन के किस्से कोई याद आ गया आपको? उस टाइम कौन सी बात बनी होगी जो आपको अभी तक याद है? देखिए उनका ऐसा है कि जब छोटे में हम लोग के एक छोटा सा किस्सा है कि उन्होंने साइकिल, मतलब उनका ड्रेड था हाउ वर्कर शी इज। उन्होंने छोटे में साइकिल चलाना शुरू की तो साइकिल चलानी आती थी। उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड ये 80s की बात है। तो वो 2-3 बार गिरे, उनके वहाँ फ्रैक्चर भी आया, लेकिन रुकने वाले हम से नहीं थे। पाँव टूटा था तो भी प्लास्टर लगा साइकिल चला के सीखी। सेम इज़ द केस कि उन्होंने फौज से कोई रिजन देना नहीं है। एक बंदा PhD कर रहा है बायोकेमिस्ट्री में, फॉर्म निकलता है, मान सकता है कि भाई नहीं फौज में जाने का मौका है, PhD छोड़ दी, सीधे फौज में, वरना प्रोफेसर की जॉब होने वाली है, कौन छोड़ के जाएगा। सोफिया जैसी तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन सोफिया की ओर से आप आर्मी फैमिली से हो, पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहोगे? पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि जब भी हमारी तरफ आँख निकाल के देखोगे तुम्हारी आंखें भी निकाल देंगे और सर भी काट जी। नहीं, उनको थोड़ा कम सुनता है। माता पिता होने के नाते आप क्या बोला आप? क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। नाम से सबसे पहले आप सबका नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, जी बोलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश के लिए कितनी जरूरत की काम, फैमिली के लिए कितने जरूरत का काम? देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं और उसका जवाब बनता। तो ये जो मोमेंट आज का है ये देश के लिए, हमारी फैमिली की, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। देखिए सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, वो भी इंडियन आर्मी में, दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है।
उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति, कि देश की सेवा करना। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे, तो आर्मी स्कूल से पढ़ा शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए, तो MS यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो MS यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी BSc केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद PhD करते हुए, जो PhD बायोकेमिस्ट्री करते हैं MS यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर है चाइना, वो NCC में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैराशूटिंग की है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तो प्रैक्टिस करते PhD में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्परेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया, और उन्होंने अपनी PhD, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले। अच्छा, ये ऑपरेशन लॉन्च करना था, उससे पहले कोई बात नहीं जी, इससे पहले कब बात हुई ऑपरेशन लॉन्च करना का? देखिए, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप बोलते हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी फैमिलीज को नहीं दी जाती। मैं इतना कहूँगा, उसकी औकात यही है, और उसकी औकात के हिसाब से उसको बहुत बेहतरीन जवाब मिले, और हर बार ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। भारत सरकार ने सोफिया जी को ही उसके बारे में मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो मेरी बेटी ने किया। सिंदूर के नाम से हर एक माँ बहन बेटियों को जिसका सिंदूर जाता है वही समझ सकता किया है, उसको हमें बहुत दुख है इस बात का, और इसका बदला लिया और इस बात को रेवा जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि बेटी यानी बेटा होना चाहिए, आप क्या कहेंगे उस बारे में? मैं तो बोलती बेटी ना बेटा सब बराबर है, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। आजकल हमारी बेटियों और बेटे दोनों बराबर हैं। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, इसके आगे भी जवाब देना चाहिए पाकिस्तान? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपने कैसे सपोर्ट किया था? अब जब बचपन से बच्चा रह रहा है हमारे साथ में, मेरी जो मम्मी की मेरे साथ जो थी, वो कहानी सुनाया करती थी, जो उनके पापा थे आदमी में, कि बेटा ऐसा ऐसा होता था, आदमी ऐसा होता है, ऐसा होता है, आज़ादी होती तो परिस्थिति क्या होता है, कैसा होता है, तो फिर वो बताते थे। उसके लिए तो बोलती फिर तो मैं ही जाऊँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी बात भी नहीं, तो आपको कुछ बताया मैंने आपको? बस नहीं, बस सिर्फ इतना बताया कि न्यूज़ देखा आपने, बस इतना मेरे को इस तरह से माता पिता अपने बच्चों को आपको सेना में परिवार कैसे विचार है कि बच्चों को भी डालना है, बड़े लोग होते हैं जो डालते जाते हैं, तो आपने भी इस तरह से बच्चे को डालना है। मैं मेरी बेटी का दिल हुआ, जाने बचपन से उनकी दादी बोलती थी, दादी उनकी बोलती थी कि भाई आदमी में जाके ये हुआ, नारी में ये दादा थे हमारे, मेरे पापा वो में गए, हमारे दादाजी गए, वो बोलते थे कि जब हमारे यहाँ हमारे भाई वगैरह कोई नहीं गए हैं तो मैच बड़ी होंगे तो मैं जाऊँगी। हमने ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, ट्राई करो, जितना जब जाओगे तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके हाथ आपको किसी तरह का डर नहीं? कोई डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अब वो कब आने वाले कुछ आपको मतलब मैं पहले से कुछ तय हुआ हूँ, यहाँ पे छुट्टियों में शायद आने वाले हो? नहीं, अभी तो कोई बात ऐसी नहीं हुई है। उनके बर्थडे पर आने वाले ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन पे नहीं, आने कुछ भी नहीं बताया, ये ये वो आधा भी होगा तो नहीं बताएंगे। हाँ, उनके हस्बैंड भी वो है, कर्नल है, उनका नाम ताजुद्दीन, उनका है ताज मोहम्मद, उनका ताजुद्दीन। जब इनका ताजुद्दीन बोल गया तो मैंने कहा उनका नाम हो गया वो तो। अभी वो कहाँ पे रहते मतलब उनका रहना कहाँ पे है? आपकी बेटी का और आपके दामाद? अलग अलग है, दोनों आदमी हैं, अलग है, साथ में। उनका बेटा बेटी है? हाँ, एक बेटा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, फौज में जाने की हाँ, उसको भी जाने का है। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कितना साल का? एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। उनका क्या नाम है? उसका नाम समीर। अमित समीर। समीर
है।